Hey guys, very good evening everyone. I hope you all are doing well. My name is Mansi Gaur and in my YouTube channel you'll find videos related to all kind of competitive exams. Especially we'll be doing quant and logical reasoning. So here today we are trying to solve CAT 2023 slot 1 memory based paper so that you can estimate your score especially in quant. So let's see what we have to do here. This is the first question I have, which says Geeta sells an object A at 20% profit and B at 10% loss at the same selling price. If she increases selling price such that A and B still sold at an equal price and profit of 10% made on B, then profit made on A will be. Okay, so basically we have two objects A and B. One is sold for 20% profit, we don't know their cost prices. So that means it is sold for 120% of its cost price, and this is sold for 90% of its cost price because it's a loss of 10%. So now the selling price for both of them are same. We have to set a middle ground for their selling price. We have to assume something which is like kind of LCM for both A and B. ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो हमें कुछ एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करना है विच इज़ LCM बेसिकली ऑफ बोथ A and B. आपको कोई भी वेरिएबल लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू टेक LCM ऑफ दीज टू दैट विल बी 720. सो आई एम अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस इज 720. सो इफ द सेलिंग प्राइस इज 720, तो A का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 720 बाई 120 इंटू 100 विच इज़ 600. And selling price for B will be 720 by 90 into 100, which is 800. Okay. Now, selling price has increased in such a way that the profit on B is 10%. ठीक है, तो अगर हमें B पे 10% का प्रॉफिट मिला है, that means we got a profit of 80 rupees and the selling price is 880. ठीक है, सेलिंग प्राइस ही चेंज हुआ है. सो नाउ सेलिंग प्राइस अगेन फॉर A इज सेम 880. तो अब A पे कितना प्रॉफिट हुआ है? सो A पर हमें प्रॉफिट हुआ है 880, विच इज़ द न्यू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ A अपॉन 600 इंटू 100. हमें इसका एक एस्टिमेट परसेंटेज निकालना है. सो दैट विल बी 280 अपॉन 600. So I'm writing on the top because I don't have any space. So 280 upon 600 into 100. 6 4s are 24. 6 6 are 36.66, which is approximately equal to 47%. So answer for this is B. इसमें आपको कोई वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है. So far this question was on easy category. आप easy to moderate कह सकते हैं. Now let's move on to the next question. So Brishti went on an 8-hour trip in a car. Before the trip, wait a second. Yeah, before the trip, the car had traveled a total of X kilometer till then. तो ब्रिश्टी के कार ड्राइव करने से पहले X किलोमीटर वो ऑलरेडी चल चुकी थी कार. वेयर X इज़ अ पैलिंड्रोमिक नंबर. दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. ठीक है, अब उसने 8 आवर की ट्रिप करी. वी डोंट नो व्हाट इज़ द स्पीड. लेट्स अज्यूम द एवरेज स्पीड एज AS जिससे उसने कार ड्रोव करी होगी. एंड वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट that the speed she never drove at more than 110 km per hour speed. So this will give me my total distance, speed into time. 8 hours तक उसने ड्राइव किया. एवरेज स्पीड हमने उसकी एज्यूम कर ली AS. So this gives us her distance which she traveled. This is finally equal to 26862. हमें बताना है कि उसने किस एवरेज स्पीड से ड्राइव किया होगा. So now we have two variables and only one equation. How do we solve it? We have one more information that X is palindromic. तो अब हमें पता है कि जब X जो है वो एक palindromic नंबर है, so I'll try to write it as 26862 minus 8AS. ये जो भी वैल्यू होगी वो एक palindrome नंबर होना चाहिए. ठीक है, आप इसे चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं. एक बार वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा palindrome नंबर है. और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, देखो एवरेज स्पीड यहाँ पर हमें दिया गया है कि उसने 110 किलोमीटर से ज़्यादा कभी चलाया ही नहीं है. तो मैक्सिमम वैल्यू जो स्पीड की हो सकती है वो 110 हो सकती है. 110 टाइम्स 8 इज़ 880. यानी कि हमें एक 3 डिजिट नंबर ही मिलेगा. अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 या लेस देन 3 डिजिट नंबर मिलेगा. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब X जो है वो पैलिंड्रोम है और यहाँ पर हमें एक 3 डिजिट नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी इस वैल्यू में और इस वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा. दैट मीन्स फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पैलिंड्रोम होने के लिए सेम होनी चाहिए और सेकेंड लास्ट भी सेम होनी चाहिए. तो इन दोनों को सेम रखना है तो यहाँ पर 0 होना होगा.
और ये 0 कब होगा? जब आप इसको 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट यू गेट 800. जब आप इसे माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 26062. तो फर्स्ट 2 लास्ट 2 डिजिट्स हमारी सेम है और बीच में हमें 0 मिल रहा है. सो दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर, सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर D. I hope you guys are clear. Now let's move ahead to the next question, which is this. So if x and y are real numbers such that x square plus x minus 2y minus 1 whole square equal to 4y x plus y, here the value of x minus 2y is. अब हमें यहाँ पर x minus 2y की वैल्यू बतानी है. And now it is in the question x minus 2y का हमें एक पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर. So better if we do not expend x minus 2y minus 1 whole square. बहुत बार हमारे दिमाग में आता है ना कि ये इक्वेशन है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा. बट नो, डोंट ट्राई टू डू दैट, बिकॉज ये वैल्यू हमें लॉस्ट नहीं करनी है. हमें यहाँ पर दिख रही है तो हम उसे एज इट इज़ रखना चाहेंगे ना, हम इसे लूज नहीं करना चाहेंगे. सो वॉट वी कैन डू देन? तो पहले तो मैं ये इक्वेशन लिख लेती हूँ जो हमें गिवन है. x square plus x minus 2y minus 1 whole square equals to, this should be minus, ठीक है, minus 4xy minus 4y square. अब इन दोनों को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, राइट हैंड साइड वाला पार्ट. सो x square plus 4xy plus 4y square. अब यहाँ से आप लोगों को भी कुछ दिख रहा होगा क्योंकि मुझे भी कुछ दिख रहा है. x minus 2y minus 1 whole square is equals to 0. क्या दिख रहा है हम लोगों को? ये दिख रहा है. This is an identity. What identity? This is x plus 2y's whole square. ठीक है, plus x minus 2y minus 1 whole square equals to 0. अब ये है sum of two numbers is 0. ये कब पॉसिबल है? या तो दोनों 0 हों, ठीक है, या फिर दोनों सेम हो विथ ऑपोजिट साइन, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों स्क्वायर नंबर हैं, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होंगे. सो ओनली सिनेरियो लेफ्ट इज बोथ ऑफ देम आर 0 इक्वल टू 0. ये भी 0 है, ये भी 0 है. If both of them are 0, then we substitute this as 0 and we get the value for x minus 2y very easily. So x minus 2y will be equal to 1. Our answer is option number A. I hope you guys are clear. ये तीनों क्वेश्चन अभी तक तो मुझे easy to moderate लेवल में लगे हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट मुझे अभी तक नज़र नहीं आया है. Let's see अगर हमें कुछ नज़र आता है तो. So I'm going to erase this and we'll move on to the next question. I hope you guys are clear. I'm erasing it because I need space for my next question. So next question is, let alpha and beta be two distinct roots of the equation this, such that alpha plus beta and alpha times beta are the distinct roots of the equation. Another equation is given, quadratic equation. Then the value of this is, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें k और p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. Once done, we can easily substitute the values of k and p over here and we can answer. So alpha और beta first वाली equation के रूट हैं, तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ. 2x square minus 6x plus k equals 0. Alpha and beta are the roots of the equation. So we have the relation of sum of roots and product of roots. So sum of roots alpha plus beta is equals to 6 by 2, which is 3 here. Alpha into beta is k by 2. ठीक है. Next equation given is x square plus px plus p equals 0. और इसके जो रूट्स हैं, जो दो रूट्स हैं, वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा पहला रूट है, अल्फा टाइम्स बीटा इज द सेकंड रूट. तो अगर अब मुझे इसका रिलेशन चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगी? सम ऑफ द रूट्स, दीज आर टू रूट्स, इज इक्वल टू माइनस पी. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों मेरे रूट्स हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज पी. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ रिलेशन. और हम देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन दे रखी है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है इन दोनों के अंदर, एंड देन वी हैव टू आंसर दिस. ठीक है. अल्फा प्लस बीटा इज 3 प्लस k बाई 2 इक्वल्स माइनस पी. सो 6 प्लस k इक्वल्स माइनस 2p. ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई. नाउ चलो दूसरी वाली के अंदर भी रख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू अल्फा बीटा k बाई 2
इक्वल टू पी. सो 3k इक्वल्स 2p. चलो ये दूसरी मिल गई. अब हम क्या करते हैं, ये 2p की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो 6 प्लस k इक्वल्स -3k and minus 4k will be equal to -6, k will be equal to -3/2. k की वैल्यू मिल गई. if k is -3/2 we can get value for p also very easily. k is -3/2, so p will be 3 into -3 -9/4. चलो k की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई. अब हमें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. विल डायरेक्टली सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन एंड वी गेट अवर आंसर. सो 8 times k's value is -3/2, p's value is -+9/4, and let's try to simplify it. So -3 into 2 will be -6, 9 -6 will be 3. So it will be 8 into 3/4, which is 2 times 3, so 6. Answer for this is 6. ठीक है. Easy question. थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं हम इसे, बट अगेन इट विल नॉट टेक मोर देन 1 minute टू सॉल्व दिस, अगर आप जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं तो. Anyways, now we are going to move on to the next question. I'm going to erase everything. Okay, all right. Let's move on to the next question. This question is interesting. ये question थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में. Let's see. Find the number of natural numbers less than or up to 1000 having different digits. तो हमें 1000 तक जो है डिफरेंट डिजिट्स उसके अंदर होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, या तो 1 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, ठीक है. चलो ऑल राइट. 1 डिजिट तो 9 तक नंबर हो गए, सारे अलग अलग हैं, ठीक है. 2 डिजिट अगर हमें नंबर चाहिए तो पहले वाले में 0 तो नहीं आ सकता है, बाकी 1 to 9 तक सारे नंबर आ सकते हैं, यानी कि 9 नंबर आ गए. बचे हुए दूसरे केस में 0 भी आ सकता है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, अगेन 9 नंबर हो गए, ठीक है. 3 डिजिट अगर आपको नंबर चाहिए तो पहली प्लेस पे अगेन 0 तो नहीं आ सकता, तो हमारे पास 9 केसेस हैं. सेकंड के लिए अगेन 9 केसेस हैं. थर्ड स्पेस के लिए 8 केसेस हैं. सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर. सो वी गेट 9 plus 81 plus 81 times 8, 648. Let's add them all. 648 plus 81 plus 9, 738. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा. कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया. दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 5 डन. 5 क्वेश्चन जो हैं वो हम कर चुके हैं. आई होप यू गाइज आर क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ. आई होप माई स्पीड इज़ ओके फॉर यू गाइज. कभी कभार मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाती हूँ. सो इफ़ यू ऑल्सो फील द सेम देन प्लीज़ कमेंट बिलो कि थोड़ा मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलो तो हमें समझ आएगा, और समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, इट्स ओके, ऑल राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या करना है. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज 1134 raised to the power n is divisible by 168, and 168 raised to the power m is divisible by 1134 raised to the power n. तो दो वेरिएबल तो मुझे ऑलरेडी दिख रहे हैं. वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n प्लस m. m और n तो दिख ही रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो डिवीजन वाला रिलेशन होता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो लगा सकते हैं. रिमाइंडर है नहीं तो हमें जो है कोशेंट को अगेन वी हैव टू टेक इट एज अ वेरिएबल. तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे. इट्स नॉट अ गुड आइडिया, राइट. तो इसे हम किसी और तरीके से कोशिश करते हैं. और क्या ही बचा है हमारे पास तरीका. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज नंबर्स. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. 1134 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. 2 5s are, 2 6s are, and 2 7s are. So this is divisible by 3. 3 1s is 3. 3 8s are, 3 9s are, again divisible by 3. 63, 21, 7 and 7. ठीक है. So this 1134 I can write as 2 times 3 raised to the power 4 times 7. ठीक है. 168 का भी कर ही देते हैं हम लगे हाथ.
So 168 is 42 times 8, 42 times 4, 21 into 2 क्यूब, और ये हो जाएगा 3 into 7. चलो, so 3 into 7 into 2 क्यूब हटा देती हूँ मैं इसे. So whole raised to the power n, और हमें क्या मिला था 168 का 2 into 3 into 7 तो था ही. So 21 into 2 42 क्यूब था ना हमारे पास, 2 क्यूब था. ठीक है, चलो ये डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए. इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल है ना. तो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो देखो 7 की यहाँ पर पावर 1 ये इजीली कैंसिल हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 4 है, इजीली कैंसिल हो सकता है. ठीक है, ऑलराइट. तो 3 और 7 तो हमारा गया. अब डिनोमिनेटर में है 2 रेज टू द पावर 3, न्यूमिनेटर में है 2 रेज टू द पावर n. अब हमें डिनोमिनेटर को पूरा खत्म करना है, तभी तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा. सो n minimum value we have to take as 3 such that 2 to the power 3 gets cancelled. अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, n कुछ भी हो सकता है बट हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए. सो n की मिनिमम वैल्यू 3 होनी चाहिए जिससे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए. सिमिलरली विल डू फॉर द अदर वन, रिवर्स केस. 168 रेज टू द पावर m यानी कि 2 रेज टू द पावर 3 into 7 होल रेज टू द पावर m is divisible by 1134 raised to the power n. अब हम n को ना 3 मिनिमम हमने वैल्यू इसकी एज्यूम करिए, ले लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3 into 3 to the power 4 times 3 12. कुछ नहीं किया मैंने, n को यहाँ पर मिनिमम 3 एज्यूम करके, और मैं इसके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मैंने किया है. सो 7 to the power 3. ऑल राइट. अब दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल, तो 2 to the power 3 तो कैंसिल हो जाएगा वेरी इजीली. ठीक है, अब ये 12 और 3 में जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम वही कंसिडर करेंगे ना. अगर हमने 3 ले लिया तो 7 to the power 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 to the power 12 तो रह जाएगा ना, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा. सो ऑल राइट, ओके. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें मिनिमम पावर जो होगी m की वो क्या लेनी होगी, कम से कम 12 लेनी होगी, तभी तो ये हमारा जो है ठीक हो पाएगा ना, तभी तो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो पाएगा. सो मिनिमम पावर फॉर दिस शुड बी 12, जिससे ये कैंसिल हो जाए. ये अगर 12 होगा तो देखो, अगर हमने m 12 लिया तो 7 to the power भी 12 रखना होगा, तो ये इजीली कैंसिल हो ही जाएगा. तो हमें मिनिमम 12 चाहिए m की वैल्यू. सो m मिनिमम शुड बी 12. अब हमें क्या चाहिए था, मिनिमम वैल्यू ऑफ n प्लस m, 3 + 12 15 हमारा आंसर हो गया. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 7th. क्या है इसमें, 1 by 1 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. इट सेज ABC 3 लोग हैं, उनकी सैलरी का रेशियो दिया हुआ है 5 6 7. आई एम अज्यूमिंग इट एज 50 60 70. ठीक है, ईजी पड़ता है थोड़ा. द सैलरीज आर इंक्रीज इन द फर्स्ट ईयर. पहले ईयर में इनकी बढ़ गई 20 25 और 20% से. इसमें 20% बढ़ा देते हैं, 10 बढ़ गया 60 हो गया. इसमें 25 बढ़ा देते हैं, 1/4 बढ़ गया यानी 15 बढ़ गया तो 75. इसमें 20 बढ़ा देते हैं, 14 बढ़ गया तो 84. ऑल राइट. अब क्या हुआ है, सेकेंड ईयर में सिर्फ A और C का बढ़ा है 40 और 25%. 40% यानी 24 बढ़ गया तो 84 हो गया. 25 यानी कि कितना बढ़ गया इसके अंदर, 1/4 इसका बढ़ गया, 21 बढ़ गया तो 84 + 21 कितना हो गया, 105 हो गया. अब जो B है वो इन दोनों का क्या है, मीन वैल्यू है. मीन क्या होता है, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2. तो हमारा हो गया 105 + 84 डिवाइड बाय 2. तो 105 5 और 4 9 18 189 डिवाइड बाय 2. 189 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 94.5. ये वैल्यू हो गई हमारी 94.5. और अब हमें ये बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है बी के अंदर. सो लेट्स सी, 94.5 - 75 डिवाइडेड बाय 75 into 100. 25 3s are 25 4s are 3 6s are 18 3 5s are 15. 6.5 into 4, 6 4s are 24 + 2 26. तो ये हो गया हमारा 26%. That's it. Okay, I hope you guys are clear. If you still have any doubt, please don't hesitate in commenting down below. Second part I will make
for this slot 1, maybe tomorrow or day after tomorrow, because I work full time for some other organization and I'm really really tired as of now. So second part will create later on. I hope you enjoyed this video. If yes, then please like, subscribe and share. And if you face any problem, comment down below so that I can make videos on that too. So all right, have a good day. I'll come up with the second part very